سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنی اولادوں کو جو چیز سکھانی ہے، ویسے تو بہت کچھ سکھانا ہے، لیکن جس خاص تعلیمات کی آج میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں وہ ہے ادب۔ اور ادب جو ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو سکھانا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ادب والدین کا ہو، ادب بزرگوں کا ہو، ادب مشائخ اساتذہ کا ہو، ادب چاہے بڑے بہن بھائیوں کا ہو، ادب بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ بے ادبی میں اتر جاتے ہیں، یا یہ کہہ لیں جو لوگ بے ادب ہو جاتے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا، کوئی نیکی، کوئی عمل ان کا نافع نہیں ہوتا۔ بے ادبی سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ ادب والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بہت سارے آئمہ، بہت سارے بڑے بڑے دانشور، دین اسلام کے پیکر، بہت سارے بزرگان دین، انہوں نے ساری زندگی ادب سیکھتے رہے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے ادب سیکھتے رہے۔ اور اگر چند سال آخر میں علم سیکھا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو سال میں نے علم سیکھنے میں لگائے، اگر وہ بھی میں ادب سیکھنے میں لگا دیتا تو زیادہ نافع بات تھی، زیادہ اچھی بات تھی، زیادہ فائدے والی بات تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ سب کچھ دلا دیتا ہے، کیا منزلیں، کیا مرادیں، کیا توبہ استغفار، کیا دینی، کیا روحانی، کیا نورانی، تمام معاملات، تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اگر کوئی ادب والا ہو تو۔ اس کی مثال کچھ یوں دوں گا کہ ابلیس نے بہت عبادت کی، سینکڑوں سال نہیں، ہزاروں سال، لاکھوں سال عبادت کی، لیکن بے ادبی کر بیٹھا نبی کی۔ یاد رکھیے گا، وہ سجدہ تعظیم تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا، ادب تھا۔ بے ادب ہو گیا، کیا ہوا؟ ساری عبادتیں بھی رد ہو گئی، گلے میں لعنت کا طوق بھی پڑ گیا، اور سارے معاملات اس کے زائل ہو گئے۔ اس لیے ادب والوں میں ہمیشہ رہا کریں۔ ادب کی بات کرتے ہوئے اب حضور نبی کریم، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ادب کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں، یعنی آیت مبارکہ کی شکل میں وحی فرما دی کہ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو تو تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں، غارت ہو جائیں، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ہائے کیا کرینہ ہے یہ ادب کا، یعنی ادب سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب جہاں کنی کا وقت آیا، اسرائیل آئے تو تھپڑ دے مارا، آنکھ نکل کے وہ جا گری۔
अल्लाह की बारगाह में पहुंचे कि आपके नबी ने ये मामला किया मेरे साथ। कहा पूछो जाके, ये मेंढा ले जाओ, पूछो इसके ऊपर हाथ रख दें, जितने इसके अंदर बाल आएंगे उतने साल और बढ़ा देंगे अगर जिंदगी चाहिए तो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, उतने साल रहने के बाद भी तो जाना है। असल में तुम्हें ये सबक देना मकसूद था कि मेरे बाद एक नबी आएगा, उसकी बारगाह में इस तरह बगैर इजाजत नहीं पहुंच जाना जान निकालने के लिए। अदब सिखाया। अदब बहुत जरूरी है। जिब्राइल अमीन आए वही लेकर, और बहुत लंबी हदीस मुबारक है जिसका मफहूम यह है, उसमें एक दुआ ये भी थी, बहुत सारी दुआएं की हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, उसमें एक दुआ ये भी थी कि जो अपने माँ बाप का बेअदब हो जाए, गुस्ताख हो जाए, नाफरमान हो जाए, वो जन्नत नहीं जा सकेगा। आपने फरमाया आमीन। जरा गौर करें, बात सिर्फ नबियों की नहीं है, वालिदैन के भी बहुत हकूक हैं, वालिदैन का अदब भी बहुत लाजिम है। अल्लाह तबारिक व तआला फरमा रहा है कि वालिदैन में से, माँ और बाप में से अगर बुढ़ापे की उम्र में कोई पहुंचे और तुम्हें वो बुढ़ापे में मिले तो उनकी खिदमत करना, उनका अदब करना, यहां तक कि तुम्हारे मुंह से उनके लिए उफ भी ना निकले। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, उफ भी ना निकले। तो अदब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अदब। इसी तरह मशाइख जो हैं हमारे, असातिज़ा जो हैं हमारे, उनका अदब बहुत जरूरी है। बेअदब लोग अपना सब कुछ गारत कर लेते हैं, नुकसान कर लेते हैं और सारी जिंदगी की कमाई गंवा बैठते हैं। खुदारा अदब वालों में रहना, अपने बच्चों को भी अदब की तालीम देना और खुद भी हमेशा अदब वालों में रहना। बहुत सारे मकातबे फिक्र, बहुत सारे लोग बेअदबी में चले जाते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन जरूर करूंगा। शिया हजरात असहाबा की बेअदबी कर जाते हैं, लिहाजा बचा करें, बेअदब नहीं होना। जो हमारे दूसरे भाई मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले, वो बुजुर्गान दीन की बेअदबी कर जाते हैं। नहीं नहीं, पीरों में क्या है, फकीरों के पास क्या है, बस अल्लाह से मांगो, खुद ही मांग लो, डायरेक्ट मांग लो। मशाइख की, पीराने कबार की, औलिया उज़्ज़ाम की बेअदबी में उतर जाते हैं। खुदारा ना किया करें। भाई मैं किसी को इज्जत नहीं दे सकता, किसी का अदब नहीं कर सकता, तो मुझे किसी की बेअदबी करने का भी हक हासिल नहीं है। और नहीं जी नहीं, ये सब जितने भी हैं ना जी, ये सब दुकानदार हैं, शोबदेबाज हैं, इन्होंने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, चलें, मुझे फिर भी अदब ही करने का हुक्म है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहता हूं हाँ भाई ये भी बेअदब है, ये भी खोटा है, ये भी बुरा है, ये भी खराब है, ये भी झूठा है, ये भी मक्कार है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जुबान पे ये अल्फाज पक जाएं और जिस दिन एक सच्चा अल्लाह का वली मेरे सामने आए, कोई साहिब मकाम, साहिब मरातिब, मुस्तजाबुद दावात मेरे सामने आए, तो मैं वो झूठा झूठा, गलत गलत, खराब खराब करने की रट में कहीं उसको भी झूठा ना कह दूं। लिहाजा उस एक सच्चे की खातिर जिसकी तलाश में मैं भी हूं, उस एक सच्चे की खातिर मुझे 100 झूठे भी बर्दाश्त करने पड़े तो मुझे जायज है, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं 100 झूठों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। खुदारा अदब किया करें। भाई मैं अपने वालिदैन का बहुत अदब करता हूं, अच्छी बात है, लेकिन किसी के सामने उसके वालिद की, उसकी वालदा की बेअदबी कर जाएं, ये भी गलत है, इससे भी बचा करें।
मैं अपने वालिदैन का तो बहुत अदब करता हूं, लेकिन किसी और के वालिदैन की बेअदबी करने में जरा दरेग नहीं करता। चले दूर नहीं जाते, हम अपनी बेगमात की बात करते हैं। मैं अपने सास ससुर की बेअदबी कर जाता हूं, बुरी बात कह देता हूं, बेअदबी वाली बात कह देता हूं, उनकी बेटी के सामने कह देता हूं, फिर क्या दिल आजारी ना होगी? तो खुदारा बेअदबियों से बचा करे, बेअदबों में नहीं जाना, अदब करने वालों में शामिल रहना है। भाई मैंने उसको इज्जत नहीं दी, तकरीम नहीं की, बहुत ऊंचे मुकाम पे नहीं बिठाया, तो भाई किसी को गिरबान से पकड़ के नीचे भी नहीं फेंक देना, नहीं, ऐसा नहीं करना, बचना है इससे, हमें अदब करना है। भाई मैं अपने शेख का, अपने मुर्शिद करीम का बड़ा अदब करता हूं, लेकिन किसी और के पीर का अदब नहीं करता से भी बचना है। भाई मैं किसी के पीर को इज्जत नहीं दे रहा, उसका एहतराम, उसकी तकरीम नहीं कर रहा, तो फिर बुराई करने का भी, बेअदबी करने का भी हक नहीं है। जब किसी मुरीद के सामने उसके शेख की बात करेंगे, बेअदबी करेंगे, तो उसकी दिल आजारी नहीं होगी कि यार ये मेरे मुर्शिदों को क्या कह रहे हैं। तो बेअदबी में नहीं जाना, बहुत अदब करना है, हर एक का अदब करना है। भाई मोहल्ले के बड़े बूढ़े हैं, सीनियर लोग हैं, फिर भी अदब करें उनका। भाई मेरे अपने कोई मामा, चाचा, ताया, कोई बुजुर्ग ननियाल ददियाल में से बुजुर्ग हैं, फिर भी अदब करें उनका। डजंट मैटर, कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही पायस लोग हों, बहुत ही मुत्तकी और नमाजी हों, दाढ़ी मुबारक रखी हो, इमामा पहनते हो, फिर ही अदब करूंगा। नहीं नहीं, वो मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे अदब करना है उनका। मैंने अपनी जुबान से कोई अलाप शलाप नहीं मुंह से निकालना, बस मैंने अदब करना है। अपने पेरेंट का भी अदब करना है, अपनी बीवी के पेरेंट्स का भी अदब करना है। और अगर कोई बात हो गई किसी की, तो मेक श्योर करना है कि मैं किसी को बुरा ना कहूं, खास तौर पर उनकी औलाद के सामने। मैं अपने शेख का भी अदब करूं और दूसरों के जो मशाइख हैं उनका भी अदब करूं। मैं सहाबा का भी अदब करूं, मैं पीराने कबार का भी अदब करूं। मुझे अदब वालों में रहना है, मुझे बेअदबों में शामिल नहीं होना। कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी बेअदबी कर रहा हूं ये सोचकर कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इज्जत के काबिल ही नहीं है। तो भाई आपके मेरे पास कौन सा ऐसा पैमाना है जिससे हम ये नाप सकें कि हाँ भाई ये इज्जत के या अदब के काबिल भी है कि नहीं है कोई जजमेंट वाला पैमाना? नहीं है। तो फिर लोग अदब सीखने के लिए सालों साल बुजुर्गों की, औलिया अल्लाह की सोबतों में रहते थे, उनके आस्थानों पर बैठे रहते थे कि अदब सीख रहा हूं मैं। उनके आस्थानों पर बैठे रहते थे, उनकी सोबतों में बैठे रहते थे, अदब सीखते रहते थे। खुदारा अदब किया करें। अपने जो छोटे हैं ना आपसे, उम्र में भी छोटे हैं, तजर्बे में भी छोटे हैं, मकाम और मर्तबे के हवाले से भी छोटे हैं, तो भी आप उनके साथ कोशिश किया करें कि बदतमीजी से नहीं, तू तड़ा करके नहीं, शफकत से पेश आए, सिलाए रहमी करें, ताकि वो भी अदब वालों में शामिल हो जाएं, वो भी अदब सीखें अपने बड़ों से। जब आप उन्हें आप और जनाब करके बात करेंगे तो इंशाल्लाह वो वही लैंग्वेज सीखेंगे जो आपने उनके साथ बोली। लिहाजा अपनी आने वाली जनरेशन को भी हमें अदब सिखाना है, अपनी औलाद को भी हमें अदब सिखाना है। कहीं भी कोई बात हो, हमें अदब सिखाना है। कोई किसी की बुराई कर रहा हो, कोई निंदा कर रहा हो, कोई गीबत कर रहा हो, उसे भी रोकना है कि नहीं भाई नहीं, छोड़ यार, वो शख्स इधर नहीं है, तो क्यों उसकी गीबत करता है? और नहीं जी वो ऐसे है, उनको जी होगा, अपनी बात करो, मेरी बात करो, छोड़ो उनको। कुछ लोग बहुत सारी बेअदबियां कर जाते हैं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लोग नबियों को भी बेअदबी कर जाते हैं। नहीं जी नबी बस आए जी, अपनी ड्यूटी की, चले गए,
बस उनका अदब तो बस बड़े भाई जितना है, बस इससे ज्यादा अदब नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अदब में रहें, अदब करते रहें और अदब वालों में शामिल हो जाएं। बेअदबों में शामिल नहीं होना। बेअदब लोगों के अमाल नाकिस होने का, अमाल गारित होने का, नेकियां बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लिहाजा कभी ना हो, अल्लाह ना करे किसी की कमाई ज़ाया हो जाए, किसी की नेकियां ज़ाया हो जाए। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को नेक अमल करने वाला बनाए, अदब करने वाला बनाए और हमारा खात्मा भी ईमान पर हो, इश्क पर हो, मोहब्बत पर हो, अदब में हो। या रब्बुल आलमीन। सब साथी दुआ के लिए हाथ उठा लें जी। हाँ, क्या कहते हैं, खरी कमाई मिलने का वक़्त हो तो तबीयत और मिजाज चहक जाती है, चेहरे पे मुसर्रत छा जाती है। आप भी कुछ ऐसे ही करें, बड़ी खुश दिली के साथ, बड़ी मुसर्रत के साथ, बड़े यकीन और वसूक के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं, लब से आमीन कहते रहें, हाथ सीने के बराबर हों। अगर ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सीने से नीचे नहीं करें। और दो जानू होकर बैठ जाए, अत्तहियात की शक्ल में, तशद की शक्ल में। ये बेहतरीन तरीका है अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने का। मुझे मेरे मशाइख ने, मेरे मुर्शिदों ने सिखाया, वही तालीमात आपके लिए है कि अल्लाह की बारगाह में बाअदब होकर मांगे, मोहब्बत से मांगे, आजिज़ी से मांगे, उसके महबूब के वसीले से मांगे, महबूब के वसीले से। बहुत सारे लोग हैं इस बात पर भी इतराज़ करते हैं कि जी वसीला क्यों जी, हम डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांग लेते। वसीले से मांगे, बस इतनी तालीमात ही काफ़ी है आपके लिए। वसीले से मांगा करें और हुजूर का वसीला तो ज़रूर पेश करें। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश किया कि या रब्बुल इज़्ज़त, मैंने अर्श मुअल्ला पर तेरे नाम के साथ एक नबी का नाम लिखे देखा था, तुझे उस नबी का वसीला पेश करता हूँ, वास्ता पेश करता हूँ। मेरे ये जो वक्त है, मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती, मैं कहूँ कि मेरी तौबा कबूल फरमा। वो जो अल्लाह की हिकमत का जो वक्त था, जो पीरियड था, जो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने गुजारा, तो अल्लाह पाक ने उस वसीले से वो सख्ती वाला वक्त जो था वो ख़त्म कर दिया। तो जब नबी को पता है कि मैंने वसीला पेश करना है, तो आप और मैं क्या नबी से भी आगे हैं माज़अल्लाह? हमें वसीला पेश करते क्या प्रॉब्लम होती है जी? कुछ लोग इस बात में भी अटक के रह जाते हैं, फंस के रह जाते हैं कि नहीं जी, नहीं वसीला नहीं, बस डायरेक्ट मांग लो। अल्लाह पाक आपको मुझे समझ बूझ अता फरमाए, दीन की मोहब्बत। हाय, याद रखिएगा, अगर दीन में से सिर्फ मोहब्बत निकाल ली जाए तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो रह जाता है। दीन की जो स्पिरिट है, जो जान है, जो रूह है, वो मोहब्बत और अदब है। खुदारा अपने दीन को मजबूती से पकड़ें और मोहब्बत कायम रखें। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के कुर्ब की मोहब्बत, और फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत, दीन इस्लाम की मोहब्बत, औलिया उज़्ज़ाम की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, मशाइख और असातिज़ा की मोहब्बत, अपने बहन भाइयों की, बीवी बच्चों की मोहब्बत, मोहब्बत और अदब सदा कायम रखें, सदा कायम रखें। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लिख लें मेरी बात, फ़ायदा होगा। दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी फ़ायदा होगा आपका, भला होगा आपका। अल्लाह पाक हम सब का भला फरमाए, हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। जितनी भी तालीमात, जितनी भी बातें हुई, अल्लाह हमारे लिए नाफ़े कर दे, अल्लाह हमें अमल करने वाला बना दे, अल्लाह हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमा। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा, अपना फ़क्र अता फरमा,
अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा, अदब वालों में शुमार फरमा। बेअदबों से पनाह मांगते हैं अल्लाह, बेअदबी करने वालों से और बेअदबी से पनाह मांगते हैं अल्लाह, हमें उनमें ना दाखिल करना। हमारा हशर हो तो अदब वालों में हो। अल्लाह हमें अपने मशाइख, अपने असातिज़ा का अदब करने वाला बना, हमें अपने वालिदैन का अदब करने वाला बना। अल्लाह हमें अदब वालों में शुमार फरमा। या अल्लाह हम पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा, हमारी औलादों नस्लों पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ों से खलासी अता फरमा। इस दियारे गैर में जहाँ सारी बैंकारी ही सूदी निज़ाम पर है, अल्लाह हमें ये बैंकों के मकरूज़ होने से बचा लेना, ये क्रेडिट कार्डों से हमें बचा लेना। या अल्लाह ये जितने भी सूदकारी का निज़ाम है इससे हमें बचा लेना। जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ों से खलासी अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियाँ दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल और तैयब वाफ़र रिज़्क़ अता फरमा, जिनके काम कारोबार हैं उनमें बरकतें, वुसअतें, तरक्कियाँ अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएँ अता फरमा अपने ख़ज़ानाए गैब से। अपने महबूब के सदके वसीले से कुल उम्मत मुसलमान में जो कोई भी बीमार है, घरों में, अस्पतालों में, एशिया में, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जो कोई भी बीमार है अल्लाह सबको शिफाएं अता फरमा, शिफाए कुल्ली, सेहत कामिला आजिला अता फरमा। बिलखसूस उम्मत मुसलमान के लिए और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह अपना रहम अता फरमा। इस वक्त पूरी दुनिया में जो अफरा तफरी फैली हुई है, जो वहशत, खौफो हिरास फैला हुआ है, अल्लाह अपने करम से दूर फरमा दे, दुनिया को अमन का गहवारा बना दे। खुसूसन उम्मत मुसलमा को यकजहती अता फरमा, यूनिटी अता फरमा, आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा अता फरमा। इन्हें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होने की हिम्मत, ताकत, तौफीक, वसाइल और असबाब अता फरमा। अल्लाह हम पर अपना खासुल खास करम अता फरमा, मेरे साथियों पर भी अपना खास करम अता फरमा, जो इस वक्त लाइव मौजूद हैं, मालिक इनकी भी, और जो बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में देखें या देख रहे हैं, अल्लाह उन पर भी अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। हम सब की झोलियां खुशियों से भर दे, हम सब की जायज़ मुरादें अपनी बारगाह से पूरी कर दे। किसी को कोर्ट कचहरी का कोई इमिग्रेशन के मामलात हैं, अल्लाह अपने खजाना गैब से मदद अता फरमा। किसी का रिज़्क तंग हो, मालिक उसके लिए रिज़्क खींच ला। तंग दस्ती से, मुफलसी से हमें बचाना। हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। कब्र की, हशर की मंज़िलें आसान फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा, आपके खानवादों की खैर फरमा, आपके आस्थानों की खैर फरमा। जहाँ जहाँ भी आप दीन की बूटियाँ फैला रहे हैं, ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें सजा रहे हैं, उनमें बहुत सारा अरूज और करम अता फरमा। या अल्लाह हजूर मियाँ साहब मुबारक उमरी खिजरी अता फरमा, हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा। हमें भी उनकी फ़ीज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह बच्चे बच्चियों के नसीब जोड़ मुक़द्दर अच्छे फरमा। जो बच्चे या बच्चियां घरों में रिश्तों के लिए बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं, अल्लाह अपने ख़जाना गैब से मदद फरमाते हुए नेक रिश्ते अता फरमा, नेक जोड़ अता फरमा। या अल्लाह नेक असबाब अता फरमा। ये बहुत बड़ा फरीज़ा है। वालिदैन बहुत परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं इस वजह से। अल्लाह अपने करम से सबके आंखों की ठंडक अता फरमा, सबके दिलों को सुरूर अता फरमा, नेक जोड़ अता फरमा, नेक रिश्ते अता फरमा। अल्लाह हम पर, हमारी औलादों पर, हमारी नस्लों पर अपना रहम अता फरमा। हम सब से दीन का काम ले ले, हमें नमाज कायम करने की तौफीक दे, दीन की समझ बूझ दे, तौबा इस्तग़फ़ार की तौफीक दे, रजू करने की तौफीक दे,
कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बेशक सब तौफीकें तेरी बारगाह से हैं, अल्लाह अपने करम से अता फरमा दे। या अल्लाह हमें एक अच्छा सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है तेरी बारगाह में क़याम रुकू और सजदे करते गुजरे, ऐसी तौफीक अता फरमा। जब वक्त मौत आए तो कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा हो, ऐसा करम अता फरमा। दुनिया में आना बामकसद हो, दुनिया से जाना बामकसद हो। अल्लाह तेरी रजा, तेरी खुशी के लिए जिए, ऐसा करम अता फरमा। हमें वैसा बना दे जैसे तुझे पसंद आ जाए। हर उस बुराई, गंदगी, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा जिसमें तेरी और तेरे महबूब की नाराजगी होती हो। अल्लाह रहम करम अता फरमा। अल्लाह खैर और भलाई पर हमें इस्तकामत अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना व रिदा का मतलूबना आतिना मोहब्बत ज़ातिका व मार्फता सिफातिक। जिन्होंने भी हाथ उठाए आमीन कहा, या अल्लाह तमाम उनकी दिली हाजात पूरी फरमा, तमाम ज़रूरतें अपने ख़जाना गैब से पूरी फरमा। जो इस महफ़िल का एहतमाम करते हैं, दामे धर्मे कदमे सुखने सलाहियत से, वक्त से, पैसे से, जिस तरह की भी खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाते हुए दुनिया व आखिरत में उन्हें अजर अजीम अता फरमा, अजर अजीम अता फरमा। मेरी हाज़िरी भी कबूल फरमा, मेरे साथियों की हाज़िरी भी कबूल फरमा, और ये महफ़िल ज़िक्र हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। आमीन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्लाह पाक आपकी और मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए और हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमाए। जो बातें दीनी, रूहानी, इल्मी होती हैं उन पर अमल किया करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत सारा इल्म हो, खूबसूरत सोच हो मेरी, खूबसूरत दिल दिमाग हो, लेकिन मेरा किरदार, मेरे अमल, मेरी नीयत अगर ठीक नहीं, फिर कमी रह जाएगी, फिर कमी रह जाएगी। हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।